सब Right, right, right. So पढ़ this, लेते हैं. yeah, you're right. This is a major problem that when we actually design our messages, commercial messages basically, that we are advertising even on billboards or the road steamers that are given in the middle of the road, you have to look into this, that how much information you are actually putting on that particular space. Because consumers who are going to consume that information, they will only have a few seconds to scan the overall information. They are not going to stay over there. They're not going to stop the car and read that information. They will drive the car, and eventually they have only a small glimpse to look at on whatever information is given. Now, there are very few billboards that I have seen in Pakistan that actually know this fact. Most of the time, they are given, they always give their address, their phone numbers. This is not the kind of information that you can put on the billboard, because nobody's gonna look at the billboard for your phone number and gonna record it. So people actually put reminder ads on billboards, or the awareness ads that can only show the image of your brand, that can make the consumer familiar with your brand. So later on, the consumer will remember the brand name, and eventually there will be some kind of curiosity that will be produced in consumer's mind, and he will go or she will go and eventually explore what the brand is all about. Okay. लेकिन सर मैंने कभी मोटरवे पे सर कभी किसी ब्रांड का सर वो नहीं देखा, मतलब बोर्ड नहीं देखा, कभी कभी नहीं देखा. You might not have seen it, and maybe this is because you're a good driver, or you're not giving much attention to these kind of things. But believe me, you will see billboards having different jumbled of paragraphs written on it. There would be more than 50 lines written on a single billboard, and there is no effectiveness in that kind of message. That's what I'm talking about. Okay. Okay, let's move forward. So there are key concepts that are involved in exposure. Number one, sensory threshold. This is the threshold where the consumer actually comes in contact with the stimuli. For example, sensory threshold का मतलब क्या है कि sometimes we hear a lot of noises. Sometimes you hear a particular music and you try to recognize it. Because the volume is so low and the music is running far away, you are unable to actually understand what this particular tune is. But when you go near to it, you approach a sensory threshold. You approach a threshold where you can actually recognize that. And human ears, they are very much in tune with sound. अगर 50 लोग भी बात कर रहे हैं, उनमें आपका दोस्त जो है वो बोलता है, तो आपको अचानक उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कौन सा दोस्त है. तो ये सेंसरी थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे आप जो है अपनी सेंसेस जो है ना आपकी एक्टिवेट होती हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं अगेंस्ट दी स्टिमुलाई. And psychophysics is really involved in it. For example, how the sound is being produced. When you go to a Cardi store, how loud the music is. That really impacts upon your mood. Because if the music is too loud, you will always try to get out of the situation. But if you're really enjoying that music, you will try to spend more time into that particular place. I'm giving examples of music because that is the most, a kind of stimulus that is being used by a lot of businesses nowadays. Then there is an absolute threshold from where you actually get into the contact of that stimulus. But there is also differential threshold. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड में जो फर्क है उसे जीएनडी कहते हैं, जिसका नाम है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. आप जब फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज़ ज़्यादा या कम करते हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आवाज़ आपको लगता है आप ज़्यादा हो गई है, तो वो एक नोटिसेबल डिफरेंस होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे स्टिमुलस में हैं, लाइट के हवाले से भी, टेस्ट के हवाले से भी, हमारी डेली लाइफ में जो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स भी साथ साथ देता जाता हूँ कि जो लाइट्स हैं, कार लाइट्स हैं, वो कितनी ब्राइट होनी चाहिए. लाइट उसमें मैटर करती है. फॉर एग्जांपल एक कैंडी जो आप खाते हैं उसमें स्वीटनेस कितनी ज़्यादा होनी चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो नहीं आप पसंद करेंगे, बहुत कम हो तो फिर भी आप नहीं पसंद करेंगे. किसी पर्टिकुलर पिज्ज़ा में सॉल्टीनेस कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, अगेन ये भी आपके स्टिमुलस पे डिपेंड करता है.
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्सपोजर के हवाले से हैं। आई थिंक हमजा हैज़ अ क्वेश्चन, ही हैज़ रेज्ड हैंड। जी हमजा, यू हैव अ क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था कि जो क्लोथिंग ब्रांड होते हैं सर, हाँ जी। सर इनके इधर जो सर म्यूजिक चल रहा होता है सर, वो क्या हर सेम और होना चाहिए या हर किसी का अपना म्यूजिक होता First of all, you must have noticed, this is my observation, that in Pakistan mostly these stores they're playing English music, and most of the consumer in those shops are not familiar with that track which is being played on the stereo. Uh, it should be it सर should be on a level मोस्टली which Aji, you have some feedback? Bole? सर मोस्टली इंग्लिश सॉन्ग्स लगे हुए होते हैं और क्लासिक सॉन्ग्स लगे हुए होते हैं, पुराने स्लो टाइप लगे हुए होते हैं सूदिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। मैंने ये हाँ, नोट किया। हाँ, बिल्कुल यही होता है, बट अगेन उसका बहुत सारे स्टोर्स में अच्छा एक साउंड का लेवल है आजकल, लोग क्योंकि अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। मैं किसी ज़माने में दोस्तों के साथ चाय खाना चाहता था, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता था कि सम टाइम अ, उनका जो म्यूज़िक है वो इतना लाउड हो जाता था कि हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हुए ना थोड़ा-सा ऊँची बात करते थे, तो हमें बुरा लगता था और बंदा थक भी जाता है जल्दी ऊँची बात करते हुए, आपकी कन्वर्सेशन पे है। सर इम्पैक्ट मैंने पड़ता है। आज तक सर जे डॉट पे जुनैद जमशेद की कोई नात नहीं सुनी सर। अच्छा, तो आप क्या सारा दिन वहीं पे गुज़ारते हैं? नहीं सर, क्या पता वैसे किसी भी दिन सर मैंने वहां से पूछा भी है सर, वो कहते हैं हम लोग नहीं चलाते सर इनको चलानी चाहिए। क्यों, वो जे डॉट की वज़ह से तो नहीं चलाते कि उनका राइवल है, कॉम्पिटिटर है? नहीं सर, फिर भी आप जुनैद जमशेद ब्रांड यूज कर रहे हैं तो लोग अच्छा और ज्यादा अच्छा फील करेंगे सर, जुनैद जमशेद के ब्रांड पे जाके सर उसकी कोई नाच चल रही हो। I think local music can be really effective because people have more sense of attachment to it. But आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं who are very strict in this part of their religion. They don't like music and they don't like to shop from shops where the music is played. तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसको आपने एज अ मार्केटियर अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक को नापसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर हम कैसे जो है वो जो है वो यही सिलसिला जो है इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। सर अब जरूरी तो नहीं है कि सर अब जो जिनको म्यूजिक नहीं पसंद, वो जरूरी तो नहीं है सर वो खाड़ी नहीं जाते, वो वहां जाके कह देंगे म्यूजिक बंद कर दो। एग्जैक्टली। सो कुछ लोग कह देंगे, कुछ लोग सरमन देंगे, पूरा स्पीच सुनाएंगे, कुछ लोग हो सकता है लड़ाई भी करें, फाइट भी करें फॉर दिस मैटर। हो सकता है जो मैनेजर है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी हो सकता है इस बारे में कोई पॉलिसी बना ले। अगेन मार्केटियर्स कैन हेल्प इन दिस कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, इससे आगे चलते हैं। देखें, ये पेप्सी का लोगो है, तो कैन यू डिफरेंशिएट द लोगो? क्या आपको नजर आ रहा है कि कैसे ओवर द इयर्स लोगो चेंज हुआ है? सर पहले पेप्सी कोला, फिर पेप्सी, फिर पेप्सी, फिर पाकिस्तानी पेप्सी। बिल्कुल, जो कलर्स भी यूज हुए हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट डिजाइन इज डिफरेंट। दे हैव चेंज्ड द डिजाइन बिकॉज दे वांट the consumer to know that we have changed something, although the name of the brand is same, Pepsi. बट ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिफरेंट ब्रांड्स के स्टाइल्स हैं, ये तो मैंने 4 यहाँ पे रखे हैं, वैसे तो 16 के करीब हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है। इससे कस्टमर की अटेंशन जो है वो ग्रैब की जाती है कि अच्छा हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो रीब्रांडिंग करते हैं, जैसे रिसेंटली पिछले 2-3 साल में बैंक अल्फला ने की है, जैसे मोबिलिंक ने की है। तो बहुत सारी ऐसी रीब्रांडिंग्स हैं जो कि कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए की जाती हैं। ओके, वंस अगेन रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जी, आप लोग आंसर करेंगे इसको। हाउ मच ऑफ अ चेंज would be needed in a favorite brand's price, package size, or logo would be needed for you to notice the difference? ठीक है, तो क्या लगता है जी आपको कि ब्रांड की प्राइस या पैकेज साइज या लोगो में क्या कितना डिफरेंस होना चाहिए कि आप नोटिस करेंगे अच्छा ये तो बदल गया? वैसे तो सर आजकल तो हर ब्रांड ही हम नोटिस कर रहे हैं कि बदल गया, प्राइस ऐसी चेंज हुई है कि पता नहीं चला।
अच्छा ठीक है, इसमें मेरा एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है। आप बताएं जो ब्रांड्स पे सेल लगती है उस पे कितने परसेंट सेल होती है यूजुअली? परसेंटेज कितनी होती है? सर 30%, 20%। इवन अप टू 50% एंड अप टू 70% और अप टू 100% भी होती है, राइट? यस सर, लेकिन सर वो 100% बिल्कुल नहीं होती होती। है। 100 तो नहीं होती, बट 70 तक होती है। हाँ हाँ, मैं तो एग्जैजुरेट कर रहा हूँ ना, एग्जैजुरेशन की बात कर रहे सर हैं। वो 70% वाली भी 70% नहीं मिलती। एक्चुअली जो वो उन्होंने होता बताया ये है होता कि है। पाकिस्तान में ये होता है कि वो स्टोर के अंदर एक प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसकी 70% उन्होंने सेल रखी होती है और बाकी पूरे स्टोर पे 10% 20% इतनी सेल होती है, और वो जो 70% वाली प्रोडक्ट होती है वो हर कस्टमर को यही कहते हैं कि वो खत्म हो गई है, राइट? तो यस सर। मेरा क्वेश्चन अब ये है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि किसी ब्रांड पे आपने कभी 1% या 2% सेल देखी है? नो सर। क्यों नहीं? अगर 15,000 की एक प्रोडक्ट है तो उस पे अगर 1% सेल हो तो 1,500 रुपीज आप अगर सेव कर रहे हैं, तो क्या ये 1% या फिर 150, सॉरी, तो 1% 2% सेल अच्छी नहीं है? क्यों नहीं यूज की सर जाती? बहुत अच्छी है। तो ये यूज क्यों नहीं करते ब्रांड्स? 10% से क्यों स्टार्ट करते हैं? 20% से क्यों स्टार्ट करते हैं? सर लोगों को बस ये दिखाने के लिए, सर कैच क्योंकि करने के लिए 10% कि से इधर नोटिस इधर करना लोग इधर शुरू इतने करते हैं। इतने इतने Exactly, फिगर में से सेल लगी हुई है। because that is just noticeable difference, because people don't notice small differences. They like to notice bigger differences. So a lot of brands do this, जैसे कि कैडबरी ने किया अपने डेयरी मिल्क के चॉकलेट्स के साथ, कि हम अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ाते, हम जो चॉकलेट है उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इतना नेग्लिजिबल साइज रिडक्शन करेंगे कि कंज्यूमर को पता भी ना चले। तो जो कैडबरी की डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स आती हैं, आप उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ एज कम्पेयर टू द साइज रिडक्शन. So lot of people did not notice it. Why? Because marketeers know that consumers only notice bigger changes, bigger differences. That's why when they cut the price, they cut it to 70% or 50%. Although Pakistan mein what happens, a lot of stores do this, that if they have a product which they want to sell in 4,000, they actually increase the price to 6,000 and then they put a 30% discount on that price. So eventually consumers think, okay, I'm getting a good bargain here. हालांकि वो प्राइस पे कोई bargain नहीं होता, you are being tricked over there. तो next question is, how would differences in these variables affect your purchase decision? कि इन variables में जो changes हैं, मैं इसको थोड़ा सा rephrase करूंगा कि अगर आपको पता चल जाए कि this is a marketing trick, this is a gimmick that their marketeers are playing with you, तो then would you change your purchase decision? आप अपनी purchase decision को change करेंगे? सर आई डोंट थिंक सो। Okay, and the reason for that क्योंकि सर is? तकरीबन, सर अभी भी सर अब 2020 चल रहा है सर, हर बंदा मैच्योर हो जाता है सर, बंदे को पता तो चल ही जाता है कि ये मार्केट की ट्रिक्स हैं, लेकिन फिर भी हम ले रहे होते हैं। Why क्यों परचेज कर रहे होते हैं आप क्योंकि अगर सर आपको पता जरूरत है? भी तो है ना, जरूरत तो है ना, हमें कोई चीज पसंद आ गई या वो जरूरत है तो हमने तो लेनी ही लेनी है। दैट्स वाई पीपल गो टू प्लेसेस जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स एक ही जगह पे होती हैं, क्योंकि उनकी कन्वीनियंस होती है, टाइम सेविंग होती है उसमें। और कंज्यूमर, कुछ लोग होते हैं जो कि शॉपोहोलिक होते हैं, दे गो फॉर विंडो शॉपिंग फ्रॉम हियर टू देयर, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू स्पेंड मच टाइम ऑन दीज थिंग्स. They just go and buy the thing that they really like, and they don't want to search the alternates for that. So that is also a part of the experience. But again, अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ें जो हैं उसमें आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो नोटिस करने वाली डिफरेंस होती है वो हमेशा ह्यूज होती है, लार्ज होती है. कंज्यूमर लार्ज डिफरेंसेस को नोटिस करता है. देन देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज कॉल्ड सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग. सबलिमिनल कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग लॉयल्टी। क्या है? कि ये मॉल्सन एक बियर है, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए, आई एम नॉट एक्चुअली प्रमोटिंग एनीथिंग हियर. सो जो उसका लीफ है, उस लीफ के अंदर एक उसको अगर मैग्नीफाई करें तो आपको उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं, और उन ड्यू ड्रॉप्स को अगर मैग्नीफाई करें तो उनमें एक बंदे की एक तस्वीर नजर आती है, और उस बंदे की जो तस्वीर है उसकी अगर आई को मैग्नीफाई करें तो उसमें दो फीमेल्स हैं जो कि बहुत जोर से लाफ्टर कर रही हैं, हंस रही हैं. तो जो कि अगर आप इस बॉटल को देखें, जो माल्ट की बॉटल है, उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा. तो एडवर्टाइजर्स
कुछ एडवर्टाइजर्स ये समझते हैं कि अगर आप ऐसे हिडन मैसेजेस अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में, चाहे वो ऑडियो एडवर्टाइजमेंट्स हों, चाहे वो विजुअल हों, चाहे पेपर एडवर्टाइजमेंट्स हों, चाहे वो पैकेजिंग के ऊपर जो है लेबलिंग हो, उसमें अगर हिडन मैसेजेस होंगे तो उनसे सबकॉन्शियसली, ना जानते हुए कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सबलिमिनल परसेप्शन, जो कि एम्बेड की जाती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स में, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि इससे किसी किस्म की कोई इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती है। तो सबलिमिनल परसेप्शन जो है, इसके हवाले से आपने एक तो असाइनमेंट जैसे भी करनी है। सिगरेट की डब्बी पे सिर्फ उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है, हाँ, लेकिन वो तो नजर आती है ना, वो नजर आती है सर बेसिकली विजुअल भी तो होती है, सबलिमिनल। आपने अभी बोला विजुअल भी होती है। बिल्कुल विजुअल होती है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसको देखते हैं, आपको नजर नहीं आती। जैसे ये बंदे की तस्वीर जो है ना, उसके साथ देखिए नीचे लिखा हुआ है 10,000x, मतलब अगर आप उस लीफ को, जो कि मॉल्सन के मार्ट के ऊपर लिखा हुआ है, उस लीफ को 10,000 टाइम्स जूम करेंगे तो फिर आपको ये इमेज नजर आएगी। जब बॉटल को आप देखेंगे तो नहीं नजर आएगी आपको। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट के मैच में दरमियान में कमर्शियल्स आती हैं, जब ओवर Yes, खत्म sir. होता है कमर्शियल्स आती है ना, तो अमेरिका में बेसबॉल Yes, खेली sir. जाती है, तो बेसबॉल में भी इसी तरह कमर्शियल्स आती हैं। जब एक रन लगता है, होम रन होता है, तो उसके बाद वो कमर्शियल प्ले करते हैं। तो उन्हें किसी ने आइडिया दिया कि आप ऐसा करें कि कमर्शियल के दरमियान 0.2 सेकंड्स तक 0.2 सेकंड्स तक $1 का नोट जो है ना, वो इंसर्ट कर दें। जब कमर्शियल चलेगी ना, तो किसी को नजर भी नहीं आएगा, वो आपकी आंख के सामने से गुजरेगा, आपकी आंख देखेगी, आपके दिमाग को मैसेज नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस लेवल पे आपको नजर आएगा वो। तो उन्होंने कहा ये एम्बेड करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। उन्होंने कहा और किया, एंड apparently the sales for that brand went high, but again there is no proof of this. The only theory here is कि कुछ फेवरेबल चीजें हैं जो इंसान चाहता है कि उसको मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो ये स्लाइड्स दिखाता हूँ, इसमें 2 स्लाइड्स के दरमियान में कोई एक ऐसी इमेज रखता हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू ऑडी कार है, ठीक है, और मैं स्लाइड को जब मूव करता हूँ तो वो आपको इतने टाइम के लिए नजर आती है कि नजर आती है, लेकिन आपका दिमाग उसे सेंस नहीं कर सकता, सबकॉन्शियस लेवल तक नजर आती है। तो उससे मेरी थ्योरी ये कहेगी, सबलिमिनल मार्केटिंग की थ्योरी ये कहेगी कि आपका परसेप्शन मेरे बारे में और मेरे कोर्स के बारे में अच्छा हो जाएगा। But marketers don't believe on it because there is no research that backs this theory. समझ आइए आपको कि विजिबल चीजें नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपकी असाइनमेंट है ये कि आपने सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग जो है उसके बारे में कम से कम 10 एग्जांपल्स जो है वो ढूंढ के जो है वो सबमिट करनी है, उनके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है छोटी सी। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स का एक सॉन्ग है, उसमें उसमें किसी बंदे ने उसको रिवर्स प्ले करके, मतलब उल्टा प्ले करके, तो दुनिया को बताया कि इसके अंदर वो बोलती है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ सैटर्न, मैं शैतान की सर्वेंट। तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक पीसेस हैं जिनको रिवर्स प्ले करके तो उनमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये सबलिमिनल पार्ट्स हैं जो कि खुद से इंसर्ट किए गए थे उस सॉन्ग में, ताकि लोग जो हैं वो इस चीज को जब सुने तो उनकी वो पर्टिकुलर सेंस जो है उसको वो मतलब अट्रैक्शन मिले। तो पर्टिकुलरली सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट जो है उसका कोई रिसर्च बैक नहीं है, उसके कोई ऐसे आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे जिसमें फेवरेबल फैक्ट्स नजर आए होंगे। लेकिन at the end of the day, this is a trick, this is a gimmick that sometimes is used, and we actually study this regarding perception. तो हम जब वो जो विजिबल चीज है सिगरेट की डब्बी पे, वो that cannot be subliminal. Subliminal means that actually goes to your subconscious level. It is not something which you are conscious about. Okay, sir. So next is stage 2, which is about attention. Attention is the extent to which processing activity, a particular activity is happening. Visharat, could you please turn off your mic? Sure, or off your mic. Okay, attention is the extent to which processing activity is devoted to a particular stimuli. So, हम जब multiple stimuli जो है उनको receive कर रहे होते हैं, तो हम reaction किसी खास stimulus को दे रहे होते हैं. So that is what we are paying attention to. किसी खास कलर को, उस प्रोडक्ट की शेप को, उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को,
या जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा होता है उस टाइम में, उसको हम डिवोट कर रहे होते हैं अपनी अटेंशन. तो दैट इज द मेन स्टिमुलस. एंड मार्केटियर्स, when they promote their products or services, they try very hard to understand what particular stimulus would be involved in this and where we want to grab the attention of the consumer. Consumer experiences are very sensory. वो जो 5 सेंसेस हैं वही इन्वॉल्व होती हैं, और आपने ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी सेंस है जिसको आपने ओवरलोड करना है ताकि वहां पे कंज्यूमर अटेंशन पे करे. सो मार्केटियर्स जो है उसके लिए प्लान बनाते हैं, आइडियाज डेवलप करते हैं. साइंस भी ऐसे किए जाते हैं, साइंस भी ऐसे दिखाए जाते हैं सर. हाँ, अभी हम बात करेंगे उस पे, हम सिंबलिज्म पे आएंगे. ठीक है, उसमें अब पर्सनल सिलेक्शन Okay. फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि लोगों का पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो उस एक्सपीरियंस को आप कैसे अट्यून कर सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ताकि समटाइम्स लोग जो है वो अपोजिट एक्सपीरियंस को बहुत लाइक करते हैं, समटाइम्स जैसा उन्हें पहले एक्सपीरियंस मिला होता है उसी को लाइक करते हैं. तो उसको पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से पर्सनल फैक्टर्स हैं लोगों के जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिन्हें हम परसेप्चुअल फैक्टर्स भी कहते हैं, जिसमें विजिलेंस है कि समटाइम्स आप देखें कि कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को पकड़ते हैं, उनको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस पे लिखा क्या हुआ है, इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है. तो लेबल को आप खूबसूरत बनाएं या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली लेबल करें, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दें ताकि कंज्यूमर जो उसकी विजिलेंस है, जो गौर से किसी चीज़ को देखता है, उसको अटेंशन ग्रैबिंग बनाया जा सके. समटाइम्स उसमें एक परसेप्चुअल डिफेंस होता है. फॉर एग्जांपल, कोई रिएक्शन होता है जो कंज्यूमर चाह रहा होता है कि मैं जब ऑपरेट करूं इस चीज़ को तो वो रिएक्शन प्रोड्यूस हो, और वो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक स्टोर जो है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टोर जो है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे शो केस करते हैं. आप एप्पल के किसी स्टोर में जाएं और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कैसे फंक्शनैलिटी करेगी. तो उससे इंट्रैक्शन वो डेवलप होती है और उसकी वो जो डिफेंस परसेप्चुअल स्किल्स हैं या फिर अटेंशन है वो डेवलप होती है. देयर इज वन अदर थिंग विच इज कॉल्ड अडैप्शन. इंसानों के साथ ये है कि हम लोग ये बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं. मैं हमेशा इस चीज़ की एग्जांपल देता हूँ कि कभी आपने नोटिस किया, आप मुझे बताइएगा कि आप जब हेडफोन्स पे कुछ ऐसा ट्रैक सुनते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं यहाँ तक कि वो मैक्सिमम लेवल तक चला जाता है. लेकिन कुछ देर के बाद आपके ईयर जो है वो अडेप्टेशन कर लेते हैं उस वॉल्यूम की, वो भी कम होना शुरू हो जाता है. मतलब आपको लगता है कि ये कम हो गया, इससे भी ज्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड. हुआ कभी ऐसा? शो में होता है. So Yes, that is होता है, बिल्कुल होता है. exactly. So that is what we call बिल्कुल. adaptation. All of our senses, हमारी सारी की सारी senses जो हैं वो adaptation करती हैं. तो आपको बहुत टेस्टी भी कोई फूड लगेगा ना तो वो एक खास टाइम तक टेस्टी लगेगा. Once your appetite is dead, after that, that won't be the same tasty that you actually initiated with. So marketeers के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो delight factors जो है वो introduce करवा सकें. That every time you experience the product, there is something new for you. That your adaptation, which actually slows your adaptation of that particular product, that can be reactivated. तो उसके लिए फिर आप sometimes intensity increase करते हैं किसी चीज़ की, duration को increase करते हैं, उसकी discrimination यानी दूसरों से कैसे वो मुख्तलिफ लगती है उसको increase करते हैं, उसका exposure increase करते हैं, या उसकी relevance जो है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं consumer के हवाले से. तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें adaptation हो सकती है और इनके हवाले से marketers जो है वो चीज़ को change करते हैं. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिसमें आप ये सारा काम कर सकते हैं. अच्छा जी, ये गोल्डन ट्रायंगल है. गोल्डन ट्रायंगल का मतलब ये है कि लोग जो हैं उन पे जो न्यूरो मार्केटिंग एक पर्टिकुलर एरिया है. आई डोंट नो इफ यू नो दिस एरिया और नॉट, बट आई विल राइट डाउन द नेम हियर सो यू कैन सर्च इज न्यूरो मार्केटिंग. So neuromarketing, neuro means basically related to your brain. जो चीजें आपके ब्रेन से, न्यूरो मार्केटिंग जो है उसमें ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए जाते हैं क्योंकि आजकल ये मशीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं MRI मशीन्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स. ये आपके ब्रेन में जो एक्टिविटी है उसको इस तरह की शेप में इंट्रोड्यूस करवाती हैं. आपको ये वाले कलर्ड किस्म के हीट मैप्स, इनको हीट मैप्स कहते हैं, ये हीट मैप्स आपको नजर आते हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान के ब्रेन के अंदर चल क्या रहा है. तो बेसिकली ये जो स्टडी थी ये आई ट्रैकिंग स्टडी थी जिसमें उन्होंने रिवील किया कि लोग जब प्रोडक्ट्स को देखते हैं या शेल्फ्स पे देखते हैं तो आखिर वो किस तरह से देखते हैं. तो अगर आप मेट्रो स्टोर पे जाते हैं कैश एंड कैरी पे,
तो टॉप शेल्फ से लेके तकरीबन इतना एरिया आप देखेंगे, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बॉटम का एरिया नहीं देखते। इसलिए जो बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं पे करती स्टोर को, अक्सर वो प्रोडक्ट्स आपको डाउन वाली शेल्फ पे नज़र आती हैं। ज़्यादातर लोग टॉप लेफ्ट पे देख रहे होते हैं, इस कॉर्नर में देख रहे होते हैं। ये कैसे उन्हें पता चला? उन्होंने सर आई जेंट्स ट्रैकिंग, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, उन्होंने आई ट्रैकिंग जो लेडीज तो हर डिवाइसेस जगह है। देखती हैं। यार क्या बात है, आप जेंडर में इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल मार्केटियर के लिए अच्छा है कि वो इस चीज़ पे भी गौर करें। लेकिन एक स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओहायो यूनिवर्सिटी ने ये एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने 3600 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया था। वो स्टडी ये थी कि क्या मेन ज़्यादा बोलते हैं या वुमेन ज़्यादा बोलती हैं। तो आई थिंक मैं इस क्लास में पूछूंगा तो हो सकता है कि बॉयज़ वुड से कि बॉयज़ कम बोलते हैं, ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, एंड फीमेल्स वुड से दैट फीमेल्स एक्चुअली टॉक लॉट लेसर देन बॉयज़। सो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली दे केम टू नो दैट बोथ ऑफ देम एक्चुअली स्पीक द सेम, क्योंकि उन्होंने पूरे 2 महीने तक इन 3600 स्टूडेंट जो हैं इनके साथ ऑडियो डिवाइसेस जो हैं अटैच की, और नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए जो वो पर डे एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स स्पीक बोलते थे। तो द अमाउंट वाज ऑलमोस्ट नियरली 6000 वर्ड्स दैट दे यूज्ड टू स्पीक एवरी डे। तो दैट मीन्स कि वो सिमिलरली जो है ना वो, तो हमारी assumption जो है जेंडर के हवाले से दैट कैन बी just an assumption. Later on research can be very different from your assumption. So as I told you कि आप scholar.google.com पे जाएंगे और वहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ आपने सर्च करनी है तो आप सर्च कर सकते हैं कि is the golden triangle same for male or females। ठीक है, तो आप जो है सर्च करके पढ़ सकते हैं इस बारे में। Okay, so reflection questions again जी, do you think that subliminal perception works? क्या आपको लगता है कि जो मैंने कहा कि ये subliminal perception होती है कि subconscious level पे आपको कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो क्या आपको लगता है ये काम करेगा, कोई ऐसी चीज काम करेगी? क्योंकि आज हमने बहुत बात यस की सर। स्टोर में जाके जो म्यूजिक सुनने की बात है ना, वो बहुत की है। तो अक्सर हम स्टोर्स में जाते हैं, म्यूजिक लगा होता है, हम नोटिस ही नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा जो है ना वो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने का और सब कुछ वहाँ पे जो एम्बियंस है उसको अडाप्ट करने का जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। सो इसको देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में। फाइनली वी विल टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरप्रिटेशन इंसान कैसे करते हैं। एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी की फील्ड है जिसे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। गेस्टॉल्ट एक बंदा था जर्मन में, उसने ये फील्ड स्टार्ट की, और लोग जो हैं वो स्टडी करते हैं कि चीज़ों का आपस में क्लोजर यानी फासला कितना है, सिमिलैरिटी चीज़ों की कितनी है, कितनी एक जैसी दिखती हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत डिसइंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होती है, प्रोडक्ट्स ऐसे पड़ी होती हैं कि आपका दिल नहीं करता देखने को, उनके ऊपर मट्टी पड़ी होती है। बहुत सारे स्टोर्स ऐसे होते हैं, नीट एंड क्लीन शेल्फ्स पड़ी होती हैं, अच्छे तरीके से डिस्प्ले की जाती हैं प्रोडक्ट्स। तो ये रियली मैटर करता है, ये कंज्यूमर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। फाइनली सेमियोटिक्स थोड़ी सी जिस पे हम बात करेंगे कि सिंबल्स कैसे मैटर करते हैं, ऑब्जेक्ट, साइंस, इंटरप्रिटेशन and icons, indices, symbols that are used to represent brands, to represent businesses, to represent products. आप देखें ना, कोका कोला की जो बॉटल की शेप है, जब से कोका कोला इंट्रोड्यूस हुई है उसकी बॉटल की शेप सेम है, और वो एक ऐसी बॉटल है कि कंज्यूमर यहाँ तक कहते हैं कि अगर कमरे में अंधेरा हो, हम रात को सोए हों और हमें कोका कोला की बॉटल जो है वो इफ वी टच इट वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज कोका कोला's बॉटल। अगर स्टारबक्स की कोई कॉफ़ी जो है वो पीता है तो उसे पता होता है, दूर से अरोमा जो है वो स्मेल करके बता सकता है कि दिस मस्ट बी स्टारबक विच इज़ आउटलेट नियर बाय। ठीक है, जो नाइकी का स्मोच का साइन है वो देख के आप बता सकते हैं ये कौन सा ब्रांड है। आप विंडोज़ का आइकन देख के बता सकते हैं कि ये विंडोज़ की सॉफ्टवेयर का आइकन है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको इस्तेमाल करके ब्रांडिंग की जाती है और फिर उसको कस्टमर्स को ट्यून किया जाता है इन चीज़ों के साथ, सो कस्टमर्स कैन actually come to know about this. Okay जी, any questions? I think that's the end of it. आपके कोई questions हैं तो वो ले लेते हैं, उसके बाद I think we should call it a day. नो सर। इसका मतलब सब समझ आ गई सबको? यस सर, जो भी पढ़ा Yes, वो sir. समझ गया।
ओके सो आपने मैं आई विल सेंड यू द चैप्टर, यू विल हैव टू रीड द चैप्टर, और उसके बाद आपने जो सबलिमिनल एडवर्टीजमेंट्स हैं उस पे आपने असाइनमेंट करनी है। आपने 10 ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं वो नोट करने हैं, उनको लिखना है एक रिपोर्ट की फॉर्म में। 3 से 4 पेजेस की रिपोर्ट बनानी है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, यूजिंग the images that you find out, also the text that you will write, अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसमें रेफरेंसिंग करनी है ज़ोटेरो को यूज़ करके, और ज़ोटेरो कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं अगेन यूट्यूब से एक दो वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपने अभी तक इंस्टॉल कर लिया हो उसको। एक टाइटल पेज बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे असाइनमेंट बनानी है, इट शुड लुक लाइक एन असाइनमेंट बाय अ ग्रेजुएटेड पर्सन। कोई क्वेश्चन हुआ तो इन द मीन वाइल मैं छोटा सा टेक्स्ट भी लिख के आपको भेज दूंगा कि असाइनमेंट क्या है, और साथ में कोई क्वेश्चन हुआ वो भी आंसर कर दूंगा। ठीक है? ओके सर।